کا ہاتھ پیر کے بال صاف کرنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا لڑکیوں کے ہاتھ پیر میں اگر بال زیادہ ہوں تو شادی سے پہلے صاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ زیادہ نہ بھی ہو تو بھی صاف کر سکتی ہیں، شادی سے پہلے بھی کر سکتی ہیں، شادی کے بعد بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا خواتین اپنے پورے جسم کی ویکس کروا سکتی ہیں؟ فرحت خانیوال سے جی کروائی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے، یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ۔ جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے، منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے۔ یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو۔ لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بصورت بنایا، بصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک کے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے، آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں، جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، پوری چمڑا چینج ہو گیا، اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا، خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کو چاہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں۔ یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز۔ ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہو، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے، ایسی بہت زیادہ بھدی ہو کسی خاتون کی آئی بروز جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہے، یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہے، کسی کی باریک ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہو، تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئے، تو اس کی گنجائش دی ہے۔ تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے، حسن بڑھتا نہیں ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل ہے، عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے، اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل نا۔ تو آپ نے شروع میں بات ایسی کیوں کی ہے جو سوسائٹی میں قابل عمل نہیں ہے؟ ہمیں شریعت میں اس کی بیسیوں مثالیں، ایک سیکنڈ، بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ ایک چیز بعض دفعہ غلط ہوتی ہے لیکن مجبوری میں کیا ہوتی ہے، وہ جائز ہوتی ہے۔ ہاں وہ چیز جو صریح حرام ہے نا، وہ کبھی مجبوری میں، شراب مجبوری میں جائز نہیں ہوگی، چرس مجبوری میں جائز نہیں ہوگی۔ ایک چیز ناجائز ہے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے، تو اب اس کا سائیڈ افیکٹ نہ کرنے میں زیادہ ہو رہا ہے، لڑکی کا رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ صرف بارات کے چکر میں بہن کی رشتہ ہی ٹوٹ جائے؟ اسی طرح جہیز غلط چیز ہے، لیکن میں کہتا ہوں بھائی سسرال لالچی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے بیٹی کو اگر جہیز نہیں دیا، آگے ساری زندگی ساسوں کے تانے سنتی ہے وہ۔ جہاں ایسی سچویشن ہو تو جب ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے، تو جہیز دینا بھی ظلم سے بچنے کے لیے جائز ہے۔ یہ وہاں روکا جائے گا جہاں دونوں پارٹیاں اس کو سمجھتی ہوں، جہاں ایک پارٹی سمجھتی ہے دوسری نہیں سمجھتی، پھر تو دینا پڑے گا آپ کو جہیز، برباد ہو جائے گی بیٹی کی زندگی۔ اور آسان مثال بیان کر دیا مولوی صاحب نے، رشوت لینا بھی حرام، رشوت دینا بھی حرام، حدیث میں ایسے ہی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں۔ لیکن آگے حدیث کی تشریح میں جب آپ جائیں گے تو علماء نے لکھا ہے لینا دینا جب حرام ہے جب آپ کسی کا حق دبانے کے لیے دے رہے ہو رشوت۔ آپ کی سیٹ بنتی نہیں تھی گورنمنٹ کی، کسی اور کا حق تھا، آپ نے حق مارا، رشوت دے کے اس سیٹ پہ آ گیا، یہ حرام ہے۔ لیکن آپ کا حق بنتا ہے، اگلا صرف رکاوٹ ڈال رہا ہے اس بیس پہ کہ آپ پیسے نہیں دے رہے، تو یہاں وہ لینے والا مجرم ہے، آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو۔ نہیں ہے بات، میرا خیال ہے سمجھ، آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو بھائی، آپ دوسرے کا حق چھیننے کے لیے نہیں، اپنا حق لینے کے لیے دے رہے ہو۔ اب مولوی صاحب اب کسٹم میں دیکھ لو نا، کنٹینر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اب انہوں نے حدیثیں سنی ہے رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام، وہ دے ہی نہیں رہے، تو ان کا کنٹینر قیامت آ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، دجال آ جائے گا، وہ کنٹینر تباہ کر دے گا، دجال آ کے وہ نکلے گا وہاں سے۔
ऐसे मौके पे क्या होगा? अब वो मौलवी साहब ने खुद तो बयान कर दिया रिश्वत लेना भी हराम, देना भी हराम, लेना भी हराम, देना भी हराम। अब उनको अपना बिजनेस हुआ, कंटेनर उनका फंसा हुआ है, वो कह रहे लेना भी हराम तो देना भी हराम, देना भी। भाई सारे प्याज सड़ रहे हैं भाई सारे प्याज क्या हो रहे हैं? सड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए का माल बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे मौके पे वो बेचारे किताबें लेके गुंजाइश तलाश करते हैं। तो जब किताबें उठाते हैं उसमें लिखा होता है भाई लेना हर सूरत में हराम है, देना उस सूरत में हराम है जब आप दूसरे का हक मार रहे हो। गवर्नमेंट ऑफिसर अगर आपका हक दबा रहा है तो अपना हक लेने के लिए दोगे तो फिर उसको गुनाह मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा गुनाह। अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में ये उलमा आते हैं ना, इस तरह के मौलाना लोग जिनको इल्म कामिल नहीं होता, फिर वो जब वो देते हुए पकड़े जाते हैं, लो भाई बयान क्या कर रहे थे, देना भी हराम, रिश्वत लेना भी, और अब क्या कर रहे हैं, कंटेनर के लिए दे रहे हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो इल्म में कामिल नहीं होते, बात ऐसी कर रहे होते हैं, अधूरी बात होती है। एक और मिसाल दूं मैं आपको, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, मैंने उनका बयान सुना, मैंने कहा यार ये बहुत ज्यादा हो गई है। वो कह रहे थे जमात की नमाज बहुत जरूरी है। एक नाबीना साहबी नबी की खिदमत में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं घर पे नमाज पढ़ता हूँ, आपने फरमाया अजान की आवाज आती है, फरमाया फिर मस्जिद में आना जरूरी, यहाँ तक हदीस सही है। अब उन्होंने आगे बयान कर दिया कि अगर किसी रस्सी की मदद से भी आना पड़े ना, रास्ता नजर नहीं आ रहा, अब बयान तो कर दिया, यानी वो नाबीना रस्सी फेंकेगा करके या किसी को देगा और यूं करके मस्जिद। मैंने कहा यार ये तो हदीस, अब बेचारों का इल्म कहाँ। देखो उस मौलवी साहब की नीयत बुरी नहीं थी, मुनाफकत नहीं थी, वो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि यार जमात की अहमियत आ जाए, लेकिन मोटिवेशन इस स्टाइल में कर रहे हैं कि जब खुद फंसेंगे ना तो भाई ये रस्सी वाला तरीका चलेगा नहीं। अल्लाह ना करे वो नाबीना हो जाए और कोई रस्सी लाके पकड़ा दे, बोलेगा भाई कब तक रस्सी से मैं आऊंगा यार, घर में पढ़ने दे, यही कहेंगे ना। तो लोग कहेंगे लो भाई इनके कौल में और इनके अमल में क्या है, तजाद है, बातें कुछ कर रहे हैं, तकरीरें कुछ और अमल कुछ। तो ये मैंने भी अपनी जिसने सवाल पूछा है बिल्कुल सही पूछा है। बहुत से मौलाना लोग क्या करते हैं, ऐसी बात बता रहे होते हैं लोगों को मिंबर पे, उस वक्त लोग बल्ले बल्ले वाह वाह सुभान अल्लाह जबरदस्त हक परस्त, जैसे माजी में कुछ ऐसे लोग गुजरे। तो एक उसूल ज़ाब्ता रखो भाई, हमने रियासत को बचाना है बस, ऐसी की हमें शख्सियत है, बाद में पहले क्या है, स्टेट है, रियासत है, हमारी पॉलिसी है, स्टेट पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, बस पाकिस्तानी है, मुसलमान है, उसके बाद हम पाकिस्तानी है, खत्म। तो उसमें कभी फौज की मुखालफत भी होगी, कभी हिमायत भी होगी। अगर आपने एक ही चीज को दर्द सर बना लिया तो फिर आप फंस जाओगे। तो खैर मुल्क में होता बहुत उल्टा सीधा गलत हो रहा है बहुत कुछ, जो अभी जो हालात चल रहे हैं कोई अच्छे हालात थोड़ी चल रहे हैं। अच्छा खैर, तो मैं कहा, तो ये जो किसी ने पूछा ना मजहबी स्कॉलर ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, बेचारे वो गलत नहीं होते, उनको पूरी नॉलेज नहीं होती, मिंबर पे वो एकदम जोश में तकरीरें। एक और मैं मिसाल दे देता हूँ, अब ये जो हुकूमत कहती है गैस पंप मत लगाओ, ऐसे ही है ना, क्या कहते हैं उसको, जो सेक्शन लगाते हैं ना, गैस सारी खींच लेते हैं भाई, कंप्रेसर लगाते हैं, सारी गैस खींच लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक जमाने में ना हम जब छोटे थे तो हमारे इमाम साहब ने मस्जिद में मिंबर पे बयान किया कि पानी की मोटरें मत लगाओ, वाकई ये इलीगल था। गवर्नमेंट जो घरों में पानी देती है तो वो जो मोटरें लाइन से सक करती है ना, इमाम साहब ने बयान किया ये गैर कानूनी, वाकई गैर कानूनी था, ये हराम है, नाजायज है, इससे पानी चोरी करने का गुनाह मिलेगा। अब इमाम साहब बेचारों ने अच्छी नीयत से बयान किया, थोड़े दिन में इमाम साहब के अपने घर में मोटर लगी। मुझे तो पता था, मैंने बताया नहीं लोगों को, और यूट्यूब भी नहीं था, वो लोग पी गए। हालांकि इमाम साहब गलत नहीं थे, ना उनकी नीयत चोरी की थी, उन्होंने बेचारों ने अपने लिहाज से सही बताया। बात यह है कि मोटर तो लगाना इल्लीगल है, क्यों, वजह उसकी है कि जो पानी घरों में डिवाइड होके जाएगा, जब आप लगाओगे तो सारा पानी तो आप खींच लोगे, लेकिन बात यह कि जब सबने ये इल्लीगल काम कर लिया, सबने लगा ली, अब अगर आप नहीं लगाओगे ना तो 2 कतरे भी आपको नहीं मिलेंगे। अब लगाना जायज हो गया, इसलिए कि अब दूसरे का हक दबाने के लिए नहीं है, बल्कि अपना जायज हक तो मिले भाई। तो इमाम साहब ने दाएं बाएं देखा, यार मेरी तकरीर, यूट्यूब तो है नहीं, कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है, पी गए ना, चुपके से लाके घर में लगा दो। अब कोई इमाम साहब को देखता बोलता है पहले तकरीर कर रहे थे, मोटरें लगाना हराम है, खुद लगाई हुई। तो वो बेचारों को इसलिए उनको चाहिए था कि भाई पूरी नॉलेज लेते, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। गवर्नमेंट तो बहुत सारी चीजों को इलीगल करते करते खुद ही हुकूमतों के घर में, ये जनरेटर जो हम चलाते हैं गैस पे, ये भी तो इलीगल है, सारी दुनिया ने गैस के जनरेटर लगाए हुए हैं, तो ये कौन सा इलीगल है भाई। आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा, अंधेरों में कब्र के अंधेरे आपको याद आते रहेंगे। तो ये इलीगल है, लेकिन गवर्नमेंट इसको इलीगल बनाए ना, प्रैक्टिकली कर पकड़े लोगों को। बिल्कुल अब ये गैस में भी ऐसा ही हो गया है। मुझसे लोग पूछते थे पर्सनली कि भी गैस का ये जो कंप्रेसर लगाते हैं गैस खींच लेते हैं, गैस आजकल लोड शेडिंग हो रही है ना, तो मैं कहता था यार इलीगल काम मत करो, लेकिन मैंने बयान में नहीं कहा, इसलिए कि मुझे यही खतरा लग रहा था कि यार कल जो है ना सब लगाएंगे तो फिर मेरा बयान ये लोग चलाएंगे। मैंने अभी तक नहीं लगाया, मेरे इन 3 घरों में कहीं भी नहीं है वो, तो 4 घरों में 3 वो आदत पुरानी हो गई है ना। तो अब क्या है कि भाई अगर आप उसमें बाज अपार्टमेंट ऐसे हैं, लोगों ने हमसे आगे पूछा, बोले हम अगर नहीं लगा रहे ना तो एक गैस की स्मेल भी नहीं आ रही, क्योंकि
क्योंकि सबने लगा लिया। अब मैं उनको फतवा दूं कि आपके लिए लगाना भी नाजायज है, तो ये फतवा गलत हो। इसलिए कि गवर्नमेंट जब इलीगल कर रही है तो अमल करके दिखाए ना, लोगों को पकड़े, सारे वो कंप्रेसर उतारे वहां से, वरना जो नहीं लगाएगा उसको तो गैस मिलेगी नहीं, वो बैठा रहेगा अंधेरों में, लकड़ियां जलाएगा क्या वो फ्लैटों में जाकर। तो ये चल रहा है मार्केट। तो ये करते हैं बेचारे, ये नासमझी में कर रहे होते हैं, और कुछ जाहिर है 2 नंबरी में भी कर रहे होते हैं। तो सारे मौलवी सही थोड़ी होते हैं, 2 नंबर भी होते हैं। और फिर भी मैं बता दूं, अगर 1 नंबर भी मौलवी है तो मौलवी होने का मतलब फरिश्ता वो भी इंसान होता है। ये जो अल्लाह ने कुरान में कहा ना, वमन यामल सुअन सुम्मा वमन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह यजिदल्लाहु गफूरर रहीमा, किसी से कोई गुनाह हो जाए, तौबा करे तो अल्लाह माफ करेगा। तो ये आयत सिर्फ गैर मौलवी के बारे में नहीं है, मौलवी भी इसमें शामिल है। तो सबके लिए, सिर्फ पैगंबर मासूम अनिल खता होते हैं, तो किसी की प्राइवेसी में घुसने की आपको जरूरत क्या है? ठीक है ना, आप देखो भाई बात सही कर रहा है, समझ में आ रही है, ठीक है भाई। हमें शरीयत ने पर्दा डालने का हुक्म दिया। किसी का ऐप सामने आए तो क्या करो भाई, पर्दा डालो। हाँ, ऐसा ऐप जिससे लोगों को नुकसान हो रहा हो, चोरी कर रहा है, चर्च तकसीम कर रहा है चुपके चुपके, इससे तो सोसाइटी तबाह हो रही है। फिर ऐसे ऐबों में उसको तंबीह की जाएगी, ना माने तो उसको दुनिया के सामने लाया जाए। जैसे जो सियासी लीडर को रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए, तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि ये जरर उसकी जात तक नहीं है, बल्कि ये जरर मुताद्दी है, लोगों तक फैल रहा है। हमारी दोनों हो गया क्या गैर मुस्लिम की नफाक करो। अब वही बात है, मेरे पास एक दफा एक शख्स आया कि मैं जगह जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ खवातीन भी हैं, नजर की हिफाजत नहीं होती, तो मेरे शेख ने फतवा दिया कि ये नाजायज है, छोड़ दो इसको। मैंने कहा मेरे भाई, तुम्हारे शेख की नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारे शेख भी तुम्हारी तरफ बेरोजगार हो गए ना, और उनके बच्चे को यहाँ जॉब मिली, तो ये फतवा फौरन क्या हो जाएगा? क्योंकि अभी तो बदनजरी का फितना है, एंटी वंटी नजर आके दिमाग खराब हो रहा है। जब पैसे नहीं आएंगे ना घर में, तो जो चित्रौल लगेंगे ना चारों तरफ से गालियां, उसमें भी सुट्टे लगाओगे डिप्रेशन खत्म करने के लिए। तो इसका हल ये है कि नजर की हिफाजत करो, कोई जरूरत से बात करनी पड़ती है तो बात कर लो, अपनी बहन सिस्टर कह के। एक बात याद रखो, जिनका भी लड़कियों से वास्ता पड़ता है, बहन कहना सीख लें उसको। 99% मसला यहाँ से हल हो जाए। बहन क्या हाल है, वो बहन से शुरू किया करो, तो देखो फिर वो लाइन ही नहीं मारेगी। बहन बोल दिया ना तो आधा मसला याद। और बोलता नहीं है, शरारती आदमी, दिल में चोर होता है उसके, वो जहर का प्याला पी लेगा, उसके मुंह से बहन नहीं निकली। तो बहन कहना सीख। गैर मुस्लिम के नापाक कपड़े धोकर इस्तेमाल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? ये लुंडे का सारा माल जो इस्तेमाल करो, क्या हाजियों का माल है क्या ये? निकाह की कसम खाने से निकाह टूट जाता है या कसम का कफारा अदा करना होगा? कसम टूट, निकाह की कसम क्या अल्फाज क्या? अगर तलाक की कसम खाई है कि मैंने ये काम किया तो बीवी को तलाक, तो उस काम करने से तलाक हो जाएगी। बाकी निकाह की कसम क्या होती है? कसम का कफारा अगर टूट जाए तो 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाओ, या हर गरीब को 2.25 किलो गंदम दे दो, या एक ही गरीब को 10 दिनों में 2.25 किलो गंदम तकसीम करके दे दो, तो इस तरह से कसम का कफारा होता है। अगर खुद गरीब हो तो फिर 3 रोजे लगातार रखो। औरत के मरने के बाद शौहर से इसका निकाह टूट जाता है। जी हाँ, टूट जाता है। आपको कहीं और शादी किस खुशी में करती है? मरता है शौहर तो 4 महीने 10 दिन के बाद कहीं और शादी इसलिए तो करती है कि उसका टूट जाता है उससे। मुफ्ती साहब मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करवा रहे, जबकि मैं शादी अपने जाती खर्चे पर। हाँ, ये जरूर है कि मर्द जब मरता है ना, औरत जब मरती है तो फौरन टूटता है निकाह। मर्द जब मरता है तो निकाह तो टूटता है, लेकिन मिन वजहिन बाकी रहता है, क्योंकि इद्दत में कुछ हकाम निकाह वाले बाकी रहते हैं। तो इसको कहते हैं निकाह तो टूट गया, लेकिन मिन वजहिन बाज निकाह के हकाम अभी बाकी हैं, कि उसी शौहर की वजह से अब वो घर की 4 दीवारी से नहीं बाहर निकल सकती, जीनत इख्तियार नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह। मुफ्ती साहब मेरे घर वाले शादी नहीं करवा रहे। जब मैं भाई आप कुछ पूछ रहे थे, यहाँ कोई बंदा बैठा। हाँ आप हाँ, अब देखें, वो तो मैं उसूल बयान कर रहा हूं ना, करके दिखा दो तो फिर आप उसके साइड इफेक्ट सोचें खुद ही। तो वो तो मैं ये कह रहा होता हूँ, तप्पड़ है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। वो करके दिखा दो का मतलब ये कि स्टेमिना है आपके अंदर, नहीं है तो भाई फिर तो पिटोगे यार। पिटने का स्टेमिना पैदा करो। असल बात ये है, लोग ये कहते हैं कि हम दूसरी शादी करें या पहली करें, और हम कोई ऐसा तरीका बता दें कि पिटे नहीं हम। तो मैं उनको ये जवाब देता हूं कि ये तो कोई दुनिया में तरीका नहीं है कि दूसरी शादी करो पिटो नहीं, ये नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद पिटते रह गया था। बल्कि जो मुझे डिप्रेशन थी वो तो पिटना ही कहलाएगा ना। तो मैं ये तरीका नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि पिटने का हौसला पैदा करो अपने। हमारे एक दोस्त है सऊदी अरब में, बड़ा खानदानी आदमी, अल्लाह उसकी उम्र में। मुझे बदमाश टाइप के लोग बड़े पसंद हैं, क्योंकि जो बदमाश होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस होता है। जब ये गलत चीज में होते हैं तो गलत चीज में सही में, फिर सही में बहुत आगे जाते हैं। तो पहले वो गलत एक्टिविटीज में था, उसका गलत चीजों में पड़ा हुआ था ना, उसमें बदमाशी थी उसकी। तो जब अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी तो वो बदमाशी सही चीजों में आ गई। तो अभी तौबा वाले उसमें चल रहा है वो, यानी सही चीजों में। उसको क्या हुआ, एक दफा लोगों ने उठा के तबीयत से कूटा ना किसी काम पे, जो वो कर रहा था, यानी अच्छे उसमें। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो फिर ऐसा ना हो केस ही बनी। तो उसको बहुत मारा, वो उगला नहीं, ठीक है ना, वो उगला नहीं कि जिस बंदे ने उसको ये काम उसके कोई खुदा न खासा क्रिमिनल एक्टिविटीज में नहीं लगाया था, उसको किसी को फेवर देना था जो जायज फेवर था। तो जो गलत लोग थे उन्होंने उठा के मारा कि तुझे भेजा किसने, वो नहीं उगला। मैंने उससे पूछा यार इतनी मार खाई आपने और उगले नहीं, तो बड़ा हौसला है। उसने कहा हम पहले बहुत दफा पिट चुके हैं गलत कामों में, तो अब सही कामों में पिटने का हमारे अंदर हौसला। कह रहे मुझे उनके चमाटे
ऐसे लगे कि गुदगुदियां कर रहा हूँ। और जिसका नाम नहीं बताया ना वो भी कोई बड़े आदमी थे, उन्होंने फिर इसको बड़ा फेवर दिया, यार इतना मार खा के इसने मेरा नाम नहीं बताया, तो उसने तो बहुत तरक्की दी उसको। तो हमेशा तरक्कियों में वही जाते हैं जिनके अंदर पिटने का हौसला होता है, बड़े काम होगा। वरना तो एक बीवी दो बच्चे लेके जिंदगी बर्बाद कर मर जाओ इसमें, तो एक बच्चा भी छुई मुई से निकलेगा, वो जीप सही हो, उसको वही सिखाते रहो। अंग्रेजों के मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, बच्चों की एक्चुअली जैसे आजकल आ रहे हैं, बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर बच्चों का जो है ना वो देखो बहुत अजीब सी चीजें चल रही हैं यूट्यूब पे, क्योंकि बच्चे दो होके भी कंट्रोल से बाहर हैं, और जिनके दर्जनों बच्चे हैं वो कंट्रोल में है। वो ऐसे भी बहुत सारे खानदान हैं, क्यों बच्चा बच्चों को कंट्रोल करता है, उसको नेचुरल लाइफ मिलती है। खैर जी, मुफ्ती साहब मेरी हो गया मेरे भाई मुफ्ती साहब, कुरान में वलौ अन्नना 8वें पारे में दूसरे सिफर पर लिखा है कि इस आयत को पढ़ने से दुआ कबूल होती है। क्या ये सही? कौन सी आयत? हजरत ईसा अलैहि सलाम ने शादी क्यों नहीं की? उनको मौका ही नहीं मिला भाई, यहूदियों ने इतना तंग करके रखा था कि अल्लाह ने उनको आसमानों पे उठा लिया। लेकिन जब कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे तो हजरत ईसा अलैहि सलाम शादी करेंगे, समझते हो। और अल्लाह इब्न कसीर ने लिखा है कि हजरत ईसा वहां दफन होंगे जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, वहां एक कब्र की जगह खाली है, ये भी कहा। और 4 शादियां ही करेंगे, ऐसा लगता है पैगंबरों की सुन्नत कसरत से निकाय, 4 से ज्यादा इसलिए नहीं करेंगे कि शरीयत पे किसकी अमल करेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाग फिदक के मसले को एक मखसूस तबका हमेशा से उछालता है, उसकी वजह से अब बाज लोगों का मजहब ही यही है, हजरत अली, हजरत उमर, हजरत अबू बकर पे एतराज करना। उनको इल्जामी जवाब दिया करें कि अगर ये वाकई ऐसा मसला था जैसा ये बयान करते हैं तो सैयदना अली तो जिंदा थे, हजरत फातिमा के शौहर, वो क्यों दोनों बुजुर्गों के हाथ पे बैत हो गए? वो क्यों हमेशा मशवरों में उनके साथ शरीक रहे? वो भी इनको मशवरों में शरीक करते रहे। हजरत अली का तो हजरत उमर बहुत एहतराम किया करते थे, और हजरत अली भी हजरत उमर का बहुत एहतराम किया करते थे। जितने फैसले हुए सब में हजरत अली शरीक हैं। फिर हजरत उमर ने जो 6 अफराद की कमेटी बनाई कि मेरे बाद इन 6 में से खलीफा होगा, उसमें हजरत अली को, तो कितने अच्छे ताल्लुकात थे आपस में। तो अगर ये विरासत का इतना बड़ा झगड़ा होता है जितना पेश किया जाता है तो इतने अच्छे ताल्लुकात होते, तो ये मुद्दा इसुस गवाचुस वाली बात है, समझ रहे हैं ना। तो शौहर तो अपनी ज़ौजा की तरफ से लड़ता है ना, अगर हजरत फातिमा पे माज़ अल्लाह ऐसा जुल्म हुआ होता तो सैयदना अली तो खड़े होते ना उसमें। तो हजरत फातिमा को गलत फहमी थी, हजरत अबू बकर ने हदीस सुना दी कि अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती। वो क्या लालच करेंगे जो सारा सामान नबी की खिदमत में लेकर आ गए? सही हदीस है ना, नबी ने उनका सारा, एक मौके पे हजरत अबू बकर सारा सामान लेकर आ गए। नबी ने पूछा कि घर में कुछ छोड़ा? फरमाया अल्लाह रसूल का नाम छोड़ा। तो क्या वो एक बाग, और वो भी नबी की बेटी का, वो कब्जा करके बैठेंगे? कोई कॉमन सेंस की बात है ये? जो नबी का गार में, नबी के गारे यार हैं, वहां तनहा नहीं छोड़ रहे। और सूरह तौबा की आयतें देखो, ऐसी जानदार आयतें हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अगर तुम इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम पैगंबर की मदद नहीं करोगे ना करो, ये कुरान का अंदाज है। फक़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ने उसको भी मदद की है जब मुशरिकीन ने इनको निकाल दिया था। थानी इस्नैनी, जब 2 में से ये एक थे, एक अबू बकर और एक ये। तो अल्लाह ने पूरी उम्मत को अबू बकर के मुकाबले में जिक्र किया है कि तुम सारे छोड़ दो ना, अबू बकर तो नबी के साथ है। अल्लाह ने उस वक्त अबू बकर के जरिए मदद की है। और इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब नबी अबू बकर से कह रहे थे, अपने साथी से, कुरान साहिब का लफ्ज़ सिर्फ अबू बकर के लिए इस्तेमाल किया, अपने साथी से कह रहे थे ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। देखो मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया पे आके रुक गए ना, और पीछे से फिरौन आया, बनी इस्राइल ने कहा हम तो मारे गए। मूसा ने क्या कहा? इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ कौन है? मेरा अल्लाह है। ये नहीं कहा अल्लाह हम सबके साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम को डर था कि मेरी तो मदद होगी, इनकी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, क्योंकि किसी मौके पे साथ ही नहीं दे रहे। इतनी अल्लाह ने मदद कर दी है, तो अब अल्लाह कोई राह निकालेगा यहाँ के? अगर मरवा दिया, इन्ना लमुद्रकून है, मूसा मर गए, पकड़े गए, तो फिरौन तो मारेगा। तो तवक्कुल जरा भी नहीं था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ कौन है? मेरे रब है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब अबू बकर गार में थे और चारों तरफ से घेर लिया, बिल्कुल वही सिचुएशन जो फिरौन की थी, तो नबी ने क्या फरमाया? गम ना करो, हमारे साथ कौन है? दोनों के साथ अल्लाह है। इनको पता था जानिसार साथी हैं, ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह मेरी मदद करे अबू बकर की ना करे। तो यार इतनी बड़ी फजीलत, वो बाग खाएंगे यार, सोचने की बात है, वो किसी के बाग पे कब्जा करेंगे, और वो भी पैगंबर की बेटी की। तो ये गलत बात है, इसको शिया हजरात को चाहिए थोड़ा सा होश के नाखुन लें। क्यों उम्मत में इख्तिलाफ फैला रहे हैं? सारे शिया ऐसी बातें करते भी नहीं है, जो आजकल नए नए मार्केट में खतीब आ रहे हैं, वो ज्यादा इन मसलों को उजागर कर। हजरत अली ने अपनी बेटी भी दी थी हजरत उमर को, उनसे निकाह हुआ है, लेकिन शिया लोग तो इसका इनकार करते हैं, हालांकि ये तारीखी हकीकत है जो खुद शियों की किताबों से साबित है। लेकिन चलो वो तो एक बात की चीज है ना, तो ये तो कितनी बड़ी हकीकत है। क्यों एक विरासत का एक माल क्यों रोकेंगे वो, जो नबी पर इतना कुछ जानिसार किया? फिर हजरत हसन हुसैन ने क्यों एतराज नहीं किया बड़े होने के बाद? कोई एक तकरीर हजरत हसन हुसैन की दिखाओ अबू बकर उमर के खिलाफ। हजरत उमर तो हजरत हसन हुसैन का बड़ा इकराम किया करते थे, और गली में चलते फिरते जब छोटे थे तो उनको उठा के प्यार करते। एक दफा हजरत हसन जो है वो कहीं गली में खेल रहे थे, हजरत अली भी
تھے, حضرت عمر نے فرمایا, گود میں اٹھا کے فرمایا, شبیہم بی محمدin لا بی علی, یہ تو نبی کے مشابہ, علی تمہاری شکل پہ نہیں گئے ہیں. اور حضرت علی ہنس رہے تھے, یعنی کہا کہ یہ تو پیغمبر کے زیادہ مشابہ ہیں. تو پھر حضرت عمر نے کتنا پروٹوکول دیا حضرت حسین کو. آپ کو پتا ہے حضرت حسن کی جو امام زین العابدین ہیں, جو کربلا میں اکیلے باقی بچ گئے تھے, ان کی والدہ کون تھی؟ حضرت حسن کی نسل, تو حضرت حسین کی نسل جو چلی ہے نا, وہ حضرت زین العابدین سے چلی ہے. آج جتنے حضرت حسین کی اولاد, وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے. تو ان کی جو والدہ تھیں وہ کون تھیں؟ یہ وہ تھیں جو ایران کی شہزادیاں, جنہیں حضرت عمر نے حضرت حسن و حسین کو گفٹ میں دیا تھا. ایران سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں, لونڈیاں تھیں. تو لوگوں نے کہا یہ شہزادیاں, ان کو باندی بنانا ان کی توہین ہے, ان کا کسی بڑے سے نکاح ہونا چاہیے. شہزادیاں تو شہزادوں سے نکاح ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے کس کو شہزادہ قرار دیا؟ حسن و حسین کو. ہر جگہ ان کو اہل بیت کو پروٹوکول دیا. تو یہ بنایا ہوا پھڈا ہے بھائی, یہ حقیقی پھڈا نہیں ہے, یہ بنایا ہوا پھڈا ہے. اب اس پہ کوئی آ جائے گا کسی اسکالر کا, پھر ایک نئی پھڈا چھو وہاں. اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ہمارے ایک رشتہ دار جہاز میں نا, مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے, وہ سفر کر رہے تھے. تو ایک ہندو لڑکی آئی, ان سے پوچھا کہ یہ شیعہ لوگوں کا اور سنیوں کا کیا اختلاف ہے. تو ان کو زیادہ نالج نہیں تھی. انہوں نے بتایا کہ بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا, سنی کہتے ہیں ابو بکر کو. تو اس نے کہا وہ تو بن گئے نا, اب کیا کرنا ہے اس پھڈے سے. وہ ہندو لڑکی پریشان ہو رہی تھی, اب تو ہو گئے نا, یہ تو سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے نا کس کو بنا. اب تو جو بننا تھا وہ تو بن گیا, تو اب کیا کریں. تو کہنے میں نے بھی کہا پتہ نہیں, مجھے تو وہ پتہ نہیں اب کرنا کیا چاہیے. تو اب باغ فدق کا جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا, ختم ہو گیا. اب تو ہم آگے کی سوچیں نا, اب تو ہم کسی کی وراثت نہ کھائیں, جس کی بنتی ہے اس کو دے دیں. اب ان پہ اعتراض کرنا اور ان جھگڑوں کو دوبارہ شروع کرنا جو ختم ہو چکے ہیں, اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ دلائل میں جب ایک طرف کے دیکھتے ہیں تو ایک اینک سے کیوں دیکھتے ہیں, دوسری آنکھ سے بھی تو دیکھو نا, دوسری طرف کے دلائل آپ دیکھو. یوٹیوب پر کافی اسکالرز حدیث عمار کو مسئلہ بنا کر کافی تنقید کرتے ہیں حضرت معاویہ پر. اس کا کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, بھی میرے بخاری کے لیکچر اپلوڈ ہوں گے, اس میں بھی اس کا جواب آئے گا. بات یہ ہے کہ جواب والے کلپ وائرل نہیں ہوتے, نیگیٹو چیزیں فوراً. وہ میرا کلپ چلا تھا نا کوا حلال والا, اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا, ریفرنس دیے, پھر میں نے بتایا کون سے کوے کو میں نے کہا ہے حرام ہے, کون سا حلال ہے, پوری ڈیٹیل. جس نے وہ جواب سنا مطمئن ہو گیا, لیکن وہ جواب کہیں پھیل کے ہی نہیں دے رہا. بس جو ایک چیز چلی گئی وہ اس پہ لوگ کلپ بنا کے نا اعتراض. میں نے اس کوے کو نہیں بولا یہ والا جو کوا ہے آپ کا. اگر اس کو میں حلال بولتا تو ہو سکتا ہے کوا بریانی کھلاتا آپ کو میں بیٹھ گیا. تو پوری